प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अगला टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेज और वायरसेज का बहुगुणन किस प्रकार से होता है, ये हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेज बेसिकली viruses are the infectious agents made up of nucleic acid, DNA or RNA are wrapped in protein coat called as capsid. Virus has no nucleus, no organelles, no cytoplasm, no cell membrane, or totally it is a non-cellular structure, and therefore this is not belong to any of the kingdom. Basically, the viruses are basically the structure which are exception to the cell theory. Viruses are living or non-living. It is a point of debate. Viruses, as we know, structural point of view, viruses are having only protein coat and nucleic acid, whereas a living cell contains cell membrane, cytoplasm, genetic material, and cell organelles, etc. Virus can copy itself only inside host cell. Outside cell, viruses are dead. They are requiring the living organism to multiply. Whereas living cell can do sexual or asexual reproduction. In viruses, genetic material is DNA or RNA, or you can say only one nucleic acid is present in viruses, whereas in living cell, two type of nucleic acids, DNA and RNA, both of them are found in the living cell. There is no growth and development in viruses, whereas multicellular organisms, they are showing the growth and development. They cannot obtain energy or use energy in viruses, whereas living cell can obtain and use energy. Viruses do not show any response to the environment as they are dead in the environment, whereas living cells show always a response to the environment. And viruses, the change over time, and living cell has this capacity to change over the time. So the viruses are having a non-living properties more than they are living, but they can multiply in the host when they enter into host and multiply and having the capacity to multiplication, and therefore they are considered as living also. So scientists have some debate on it, that whether they are living or non-living, but some people says that the viruses are the link between living and non-living. Now we want to explain the lytic or lysogenic cycle in bacteriophage. But what is bacteriophage या जीवाणुभोजी किसे कहते हैं? ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया या जीवाणु को संक्रमित करते हैं, उन्हें हम जीवाणुभोजी कहते हैं। यहाँ चित्र के अंदर आपको जीवाणुभोजी की संरचना दिखाई गई है। इसके विभिन्न भागों के बारे में आपको आगे चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। वायरस का प्रोटीन कोड कैप्सिड कहलाता है, जिसके अंदर की तरफ आरएनए या डीएनए पाया जाता है। अगर हम बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे ऊपर की ओर इसमें दिखाया गया कैप्सिड हेड, जो प्रोटीन का कोड होता है उसे हम कैप्सिड कहते हैं, और इसके ऊपर का जो भाग होता है वो उसका शीर्ष कहलाता है। इसके अंदर की ओर एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जिसे हम डीएनए कहते हैं, जो उसके हेड और टेल को आपस में जोड़ता है। उस रीजन को हम कॉलर कहते हैं, और जो उसकी टेल होती है उस टेल के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ पाई जाती है, और पूंछ के नीचे वाले भाग के ऊपर एक बेस प्लेट होती है, जिस बेस प्लेट के ऊपर कई सारे टेल फाइबर्स लगे रहते हैं, और नीचे की ओर स्पाइक की सहायता से ये जुड़ा रहता है। तो बैक्टीरियोफेज के अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो जीवाणुभोजी की संरचना के अंदर उसमें शीर्ष और हेड और टेल पाया जाता है। हेड के अंदर उसका न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, हेड को हम कैप्सिड कहते हैं, उसका प्रोटीन का जो कोड होता है, जबकि टेल के अंदर उसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ पाई जाती है, और टेल प्लेट जिसके ऊपर 6 फाइबर्स उपस्थित पाए जाते हैं। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देखें तो वायरस के मॉडल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जो कि कैप्सिड और उसके न्यूक्लिक अम्ल को दर्शाता है,
चित्र के अंदर जैसा कि आपको दिखाया गया है। वायरस की जो लाइफ साइकिल है, बेसिकली वायरस जो है वो किस प्रकार से अपना जीवन चक्र पूरा करता है और अपने मल्टीप्लिकेशन को अंजाम देता है, ये इस पर्टिकुलर चित्र में दर्शाया गया है। सबसे पहले जो उसका स्टेप है वो कहलाता है एड्जॉर्प्शन और अधिशोषण। वायरस एक असेंबली के रूप में किसी भी जीवाणु कोशिका के ऊपर आकर के अपना अटैचमेंट बनाता है, आकर के वो एक अपने टेल फाइबर्स की सहायता से किसी भी जीवाणु कोशिका के साथ आकर के चिपक जाता है और चिपकने के साथ ही वो दूसरे स्टेप में पेनिट्रेशन करता है। पेनिट्रेशन का मतलब है कि जो वायरस का डीएनए, और हम कह सकते हैं बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो है वो जीवाणु भोजी के द्वारा जीवाणु की कोशिका के अंदर एक छिद्र करके अंदर की ओर प्रवेश करा दिया जाता है। अंदर की ओर जब ये प्रवेश कर जाता है तो अंदर जाने के बाद में ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो अंदर चला जाता है, उसका कैप्सिड जिसको हम प्रोटीन कोड कहते हैं वो बाहर रह जाता है। अब नेक्स्ट फेज के अंदर वायरस अपने न्यूक्लिक अम्ल की कॉपी करता है, उसके साथ साथ में उसकी प्रोटीन कोड बनाता है, उसका डीएनए बनाता है। इन सभी चीज़ों को वो जीवाणु के साइटोप्लाज्म को काम में लेते हुए अपनी जितनी भी असेंबली के पार्ट्स हैं, टेल फाइबर, टेल प्लेट, सभी चीज़ों को वो लेटेंट फेज के अंदर मल्टीप्लिकेशन करके और बनाता है। लाइसिस और रिलीज लास्ट पार्ट के अंदर जब ये सारे पार्ट उसके बन जाते हैं तो ये सभी पार्ट, हेड, टेल, उसका डीएनए, टेल प्लेट, टेल फाइबर्स, ये सारे असेंबल होकर के और पूरा का पूरा एक 200 की असेंबली बना लेता है। और 200 की असेंबली बना करके ये जीवाणु की कोशिका को तोड़ करके और लाइसोजाइम का निर्माण करता है, जिसकी सहायता से जीवाणु कोशिका टूट जाती है और 200 की असेंबली लेकर के ये वायरस बाहर की ओर निकल आता है। ये वायरस के लाइफ साइकिल का लाइटिक साइकिल कहलाता है। लाइटिक साइकिल जिसको हम लेंथ चक्र कहते हैं, और लेंथ चक्र एक ऐसा चक्र होता है जिसके अंदर वायरस एक वायरुलेंट फेज में होता है, वो उग्र प्रवृत्ति के अंदर होता है और वो घुसने के बाद में जीवाणु के डीएनए को मार देता है और जीवाणु के साइटोप्लाज्म पर, प्रोटोप्लाज्म पर उसका कब्जा करके और अपनी कॉपी का निर्माण करता है और पुनः जीवाणु की कोशिका को तोड़ करके अपनी 200 की एक पूरी फौज लेकर के ये बाहर की ओर नए संक्रमण के लिए तैयार रहता है। यहाँ पर ये किस प्रकार से वायरस जो है वो सेल को अप्रोच कर रहा है और सेल के अंदर किस प्रकार से ये प्रवेश कर रहा है, प्रवेश करने के साथ ही वो किस प्रकार से उसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है और मल्टीप्लाई करने के बाद में पूरी असेंबली बना करके किस प्रकार से रिलीज हो रहा है, इसको भी यहाँ पर एक 5 चरणों के अंदर इसको दिखाया गया है। लाइटिक साइकिल, जैसा कि मैंने आपसे पहले बात की थी, उसी लाइटिक साइकिल के रूप में यहाँ पर आपको डिटेल साइकिल किस प्रकार से वायरस अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, इसमें आपको कलर डायग्राम के द्वारा इस चित्र के अंदर दिखाया गया है। किस प्रकार से एक T4 फेज आकर के टेल फाइबर की सहायता से जीवाणु की कोशिका पर आकर के अटैच हो जाता है और अटैच होने के साथ ही जीवाणु भोजी ई कोलाई की सेल दिखा रखी है यहाँ पर, और कॉन्ट्रैक्टल शीथ के कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ ही उसके अंदर एक छेद बन जाता है और उस छेद की सहायता से जीवाणु भोजी अपना डीएनए अंदर की ओर प्रवेश करा देता है। जीवाणु भोजी के डीएनए के अंदर प्रवेश कराने के बाद में वो बैक्टीरिया के डीएनए को मार देता है और वो अपनी जितनी भी उसके पार्ट्स हैं, उसका प्रोटीन कोड, उसका टेल फाइबर, टेल शीथ, उसका डीएनए, ये सभी मल्टीप्लिकेशन करके और अपनी कॉपीज़ बनाता है और फाइनली ये सारी कॉपीज़ जो है वो असेंबल होकर के अलग अलग अपने 200 वायरस की कॉपी बना लेता है और जीवाणु की कोशिका को तोड़ करके ये सभी बैक्टीरियोफेज बाहर निकल आते हैं और नई कोशिका को संक्रमित करते हैं। यहाँ पर चित्र के अंदर दर्शाया गया किस प्रकार से अपने टेल फाइबर बनाता है, टेल प्लेट बनाता है, शीथ बनाता है, उसकी हेड बनाता है, टेल बनाता है। इन सभी असेंबली जो इस पार्ट को बनाता है और फिर बाद में सारे पार्ट असेंबल होकर के और एक पूरा 200 का स्ट्रक्चर बना करके ये जीवाणु की कोशिका से बाहर निकल आता है। दूसरे प्रकार की जो साइकिल इसके अंदर पाई जाती है उसको हम लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। जीवाणु भोजी के अंदर लाइसोजेनिक साइकिल में जीवाणु भोजी जो है वो संयत रूप में होता है, टेम्परेट फेज के रूप में रहता है और टेम्परेट फेज में जो फेजेज होते हैं वो केवल अंदर प्रवेश करने के बाद में जीवाणु के डीएनए के साथ में जाकर के इंटीग्रेट कर जाते हैं और जीवाणु को एक प्रोफेग की स्थिति में ले आते हैं और वो किसी प्रकार से उस समय उसका नुकसान नहीं करते हैं और जीवाणु की कोशिका के साथ में वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं और
एक लंबा एसोसिएशन बना करके वो तुरंत जो है जीवाणु की कोशिका को मारते नहीं हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से बैक्टीरिया का डीएनए और बैक्टीरियोफेज का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए आपस में एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन की प्रोसेस हुई और ये हम देखते हैं कि जो है प्रोफेग का निर्माण हो गया, जिसके अंदर जीवाणु भोजी का डीएनए और जीवाणु का डीएनए आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेट कर गया और ये प्रक्रिया मल्टीप्लिकेशन को होती रहती है और जीवाणु के साथ साथ में जीवाणु भोजी का डीएनए भी मल्टीप्लाई करता रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद में जीवाणु भोजी अपने डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए से बाहर निकाल लेता है और